and welcome back to इसके के cinema back again with another video of mine and आज हम लोग ये इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हैं which at first seems like a complicated integral but the answer is really simple. यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रल है has lots of terms and well these terms यहाँ पे पहले एक explanation मैं दे दूँ that when you write a dot right vector a dot this basically means the time derivative of a and also for b you have vector b dot this also means the time derivative of vector b. तो इस काइंड के इंटीग्रल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ट्रस्ट मी दिस इज रियली गोइंग टू शो यू कि कैसे सच अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम व्हिच लुक्स कॉम्प्लिकेटेड एट फर्स्ट रियली सिंपली सॉल्व हो सकते हैं if you are trying to see the patterns behind the actually the terms involved. In fact मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस भी लिखे हैं which I know that I am going to need to actually write the final form of the equation and well that must mean कि मुझे पहले से आंसर पता है and yes of course I know the answer. I mean you are going to shoot a video about a topic and you are going to solve a problem in YouTube video and if you already haven't solved that problem well then that's going to be real troublesome. So yes we already know the answer and that's why I have written क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे one of the two equations use होने वाला है. I haven't even exactly remembered कौन से equation में use करता हूँ. So just write both of them for use whichever you can you need to use it. अगर हम लोग अपना problem देखते हैं so it is something like this. You have to evaluate that this integral. First thing that you have to recognize is well this is basically यहाँ पे आपने वेक्टर a को मल्टीप्लाई किया है b डॉट a प्लस b डॉट a डॉट से. पहली चीज आप यहाँ पे देख सकते हो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगेट वेक्टर a. इस ब्रैकेट के अंदर पहले आपने टाइम डेरिवेटिव लिया है b का उसे a से मल्टीप्लाई किया उसे ऐड किया है यहाँ पे b को मल्टीप्लाई किया a के टाइम डेरिवेटिव. सो नाउ दिस बेसिकली लुक्स लाइक द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. आपको पता है ये तो तब टाइम डेरिवेटिव ऑफ b डॉट a हो सकता है राइट. सो दिस इज बेसिकली वेक्टर a टाइम्स यू राइट इट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ b dot a. Now anyone who has seen the formula for well the derivative of the product of two functions उसे पता है कि this is exactly how it looks. So this is well the time derivative of b dot a. When you try to expand it तो एक डिफरेंशिएशन इस पे होगा जो कि इसके डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा फिर इस टर्म से प्लस में इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट होगा इसके डिफरेंशिएशन से. Then you have plus well this is a dot. Let's just write it that way only. You have a dot, you have b dot a and well you have minus 2a dot a b minus b dot. इसे अब हम लोग लिख लेते हैं इसे exactly a dot a लिखा जा सकता है right. So let's just write it a dot a dt. तो पहली चीज यहाँ पे हम लोगों ने देखा that well this is just the time derivative of b dot a. Then you realize that well this is the time derivative of b dot a involved which is multiplied by a and then you added by the time derivative of a and then you multiplied by b dot a. So you can clearly see अब ये जो टर्म है इस a dot को अगर मैंने पुल आउट लिखने की कोशिश किया तो you know how it looks the time derivative of a. तो अब यहाँ पे एक टर्म को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे टर्म के टाइम डेरिवेटिव से प्लस अब पहले टर्म का टाइम डेरिवेटिव लिया गया इसे मल्टीप्लाई किया गया दूसरे टर्म से. सो दिस यू क्लियरली सी दैट वेल ये तो टाइम डेरिवेटिव होगा a डॉट b डॉट a का दैट वेल दिस इज बेसिकली द टाइम डेरिवेटिव ऑफ a डॉट b डॉट a. And in fact you will see you don't even need to put here a dot because well this becomes a scalar क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिया गया ये स्केलर हो जाएगा जो कि एक वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है. So let's put braces around here. Okay. अब यहाँ पे हमारी ये टर्म इन्वॉल्व है माइनस में 2 times this term minus this term. Well this surely doesn't look very familiar. लेकिन what you can still do is कि इसे he has a time derivative. Now you can clearly see there's a pattern repeating over here and maybe you can generalize it by considering some assumptions.
कि अगर यहाँ पे आपने इसे एज दिस टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग लिखा एंड मैं इसे भी एज टाइम डेरिवेटिव ऑफ सम टर्म लिख देता हूँ, देन आई कैन राइट दैट दिस इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म माइनस वहां पे जो टर्म मिलेगा, जस्ट कैंसिल आउट dt फ्रॉम द इंटीग्रल एंड dt फ्रॉम दिस, एंड हमें यही फंक्शन मिल जाएगा, उसमें एक वेक्टर ऐड कर देंगे एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्व। वेल दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन ये जो दो टर्म्स हैं ये आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड दिख सकते हैं। सो आर दे कॉम्प्लिकेटेड? वेल व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज समथिंग लाइक दिस। पहले आपने कंसिडर किया दैट वेल दिस इज माइनस ऑफ, यहाँ पे एक माइनस साइन आपने कॉमन लिया एंड हियर यू राइट इज समथिंग लाइक, मैंने ब्रैकेट्स लिख दिया, ऑलराइट। So I think we have messed around a lot with brackets, so it's just better to write this expression instead here. तो माइनस में मैंने कर दिया 2, इसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा a डॉट डॉट a, एंड ये किससे मल्टीप्लाई होता है, b वेक्टर से प्लस b डॉट a, या अब यहाँ पे ये टोटल ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये ब्रेसेस क्लोज हो गए dt। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू क्लियरली सी इज कि ये हम लोगों ने ऐसा इसे टर्म लिखा है, दिस हैज टू बी वेल शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइम डेरिवेटिव। व्हाट यू कैन बेसिकली सी हियर इज कि यहाँ पे b एक फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, एक स्केलर से मल्टीप्लाइड है, एंड प्लस में नाउ यू हैव b का टाइम डेरिवेटिव लिया गया एंड एक कंप्लीटली आपको डिफरेंट स्केलर वहां पे दिख रहा है। सो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज दैट इफ दिस हैज टू बी इवॉल्व्ड एज अ टाइम डेरिवेटिव इन द सेम मैनर एज दिस हैज बीन, आपको क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे 2a डॉट डॉट a, दिस कैन क्लियरली बी सीन दैट दिस मस्ट बी द टाइम डेरिवेटिव ऑफ a डॉट a, एंड वेल इट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ a डॉट a बिकॉज ये हो जाएगा आपका a डॉट डॉट a प्लस a डॉट which is indeed 2a डॉट a, एंड वही चीज इनफैक्ट यहां पे लिखी गई है। सो यू कैन क्लियरली सी कि इस टर्म को राइट हियर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज नॉट इंक्लूडिंग द b, दिस कैन बी रिटन एज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ a डॉट a। अब यहाँ पे a डॉट a का टाइम डेरिवेटिव लिया गया, फिर दैट इज मल्टीप्लाइड बाई b, प्लस में अब b का टाइम डेरिवेटिव लिया गया एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाई a डॉट a, एंड सो यू कैन क्लियरली सी दैट वेल दिस टर्म राइट हियर कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल ऑफ d over dt of, now this is basically the time derivative of a dot a times, well that can be a dot b, right? So you can clearly take in this d over dt and write this thing as a b dot a, and then you have a minus sign over here। अब यहाँ पे आपके पास हो गया b, आप लिख सकते हो, and then you have a dot a, here you have dt। So you can clearly see कि कैसे हम लोगों ने दो टर्म्स के टाइम डेरिवेटिव में इस पूरे टर्म जिसे इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में को लिख दिया है। Now all you have to do is subtract them, right? You can just cancel dt and dt from over there, so that just takes it out of the integral। अब कोई इंटीग्रल बचा ही नहीं। You don't have to evaluate any integral except यहाँ पे constant of integration just for the sake of it हमें although ऐड करना होगा। सिंस ये जो टर्म है, ये टर्म्स हमें वेक्टर्स दिख रहे हैं, तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो वेक्टर्स ही होंगे। बट अनदर थिंग दैट यू कैन सी राइट हियर कि इस चीज को और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है यूजिंग दीज टर्म्स राइट हियर, एंड यू कैन क्लियरली सी दैट वेल ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है दिस कैन बी shown is very similar to this form right here, and so it can be written in this form। How do you exactly do that? Well, what you do is कि अगर मैंने यहाँ पे a क्रॉस b इसे किया एंड देन आई कंसिडर क्रॉस c, एंड दैट इज a डॉट c टाइम्स b माइनस b डॉट c टाइम्स a। सो अगर मैंने इस केस में, सो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन नोटेशन
कंसिडरिंग यहाँ की यहाँ पे आपने ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, यहाँ पे ए एंड बी इन्वॉल्व है. इफ वी कैन कंसिडर जस्ट 3 डिफरेंट नोटेशंस इज गोइंग टू बी अ लॉट बेटर. तो यहाँ पे सारे ए को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वेक्टर एक्स से. हियर वी हैव वेक्टर एक्स. सारे बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वेक्टर वाई से. यहाँ पे वेक्टर वाई. सारे सी को रिप्लेस कर देता हूँ वेक्टर जेड से. नाउ इट्स नो ट्रबल विद द नोटेशन. ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि मैंने कंसिडर किया कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट नोटेशन कंसिडर कर लिया. एंड देन व्हाट आई कैन सी इज कि जो ए हमारा वेक्टर है that is basically given in this place becomes vector y, right? So if we define vector y as vector a, and then you can clearly see that here you have b dot a. So b basically becomes x dot, here you have z. यहाँ पे भी देखें so it is x यहाँ पे है and यहाँ पे x है, so you can clearly see it makes sense. b basically vector, what is that again, z is basically vector b. कौन सा दूसरा रिमेनिंग वेक्टर है? well that is x. so you can clearly see, sorry, was it x? I think it's getting lot of confusing here considering the notations. अगर पहला देखा जाए so z, so yeah, I got into this one. Here we have to consider that vector y is well vector a, then you have x dot z which is very much the same thing as z dot x. इसलिए हम लोग नेक्स्ट टर्म के टुवर्ड्स देख सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं that well vector x is going to be vector b. So here you can clearly say that vector x is going to be vector b. And the next thing that you can see is कि जो हमारा vector z होगा ये भी vector a होगा, right? So if you use these 3 equivalences, then you can clearly come to the conclusion that well x cross y cross z then should basically equal b cross y क्या है? a है, cross this is also a. So we written it out in this simple form, हम लोगों ने कर लिया है. then it should basically come out to be, मैंने dt and dt cancel कर दिया, adding a constant of integration of course, and you basically see that this is well b cross a cross a, and when you add this vector h which is the constant of integration. Now for the purposes of I think convenience you would say it, it's like b cross a minus a cross b के इक्वल होता है, which cross a will be minus of a this a cross this. so ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे अगर मैंने b क्रॉस a को a क्रॉस b से रिप्लेस किया, दिस टर्म क्रॉस a को a क्रॉस दिस टर्म लिखा. so it basically becomes a cross b plus h, and well that would be our answer to this problem. तो यहाँ पे हम लोगों ने बिना इस इंटीग्रल को सॉल्व किए वेल आंसर बताए, एंड दैट बेसिकली शोज यू दैट हाउ यू कैन यूज अ लिटिल ब्रेन ऑफ योर्स एंड यू कैन फिगर आउट दी पैटर्न्स, एंड यहाँ पे कैसे देयर आर इंडीड पैटर्न्स हिडन, एंड यू कैन कंसिडर कि वेल दीज आर जस्ट द टाइम डेरिवेटिव्स ऑफ दिस टर्म एंड दिस टर्म, द डिफरेंसेस ऑफ दीज टर्म्स, एंड यू नो लॉन्गर नीड टू सॉल्व एनी will integral any longer. आप बस dt and dt cancel करते हो and you add a constant of integration, right? so that is, but one thing that we did over here, हम लोगों ने ये वाली property यूज की है, and well it's also a simple property. हमने जो notation यूज किया था फॉर्मूला में उसकी वजह से certainly कुछ confusion हो गई. so regarding that thing you can always write it in just another form and well do well with the problem. It's just a matter of notation which surely gets confusing a lot of times. so that was I think the only problem we actually faced. Other than that we have really smoothly solved the problem. Thanks to you all viewers.